Nostalgic? Yes. I feel like we are in college again. हमारे पुराने कॉलेज डेज याद आ गए फैशन शोज में जब पार्टिसिपेट करते थे तो रियली गुड फाइंडिंग द जोश ऑफ द न्यू जनरेशन students and everybody too much and looking forward to see more josh in future. See, the only reason I'm here is the vibe. मतलब इतनी एनर्जी है इतना क्योंकि आज की जो जनरेशन है they have so many new talent and they come with this powerful energy. That's the only reason I'm here. We learn from them now. I'm here We're to learning get from your them. energy. And we need energy now. something आपके कॉलेज लाइफ में जब इवेंट्स होते थे और आज इस एरा में जो इवेंट्स हो रहे हैं there is some difference. काफ़ी है बिकॉज नाउ मीडिया इज सो लाइक सोशल मीडिया एवरीथिंग इज कम और एक्सपोजर ज़्यादा है एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो वेरी पावरफुल वेरी इंटैक्ट विद द फैशन एवरीथिंग. हमारे टाइम पे ये सब नहीं था, मीडिया नहीं थी, इतना सोशल मीडिया नहीं था, सो इतना रिसर्च नहीं होता था अबाउट फैशन एंड क्लोथ्स एंड ऑल. बट अभी स्टूडेंट्स एक्चुअली ऐसा लगता है हम सीखेंगे उनसे कुछ नया बिकॉज ऑलवेज न्यू जनरेशन very updated. Even if you're sitting in Bombay, there is something which is happening in Paris and they know and they try to follow the trend. और मैं तो यार बहुत shy थी अपने college days में, so you know nowadays I see these kids are not shy at all, which is very good. I wish I was like them. They're quite bold and beautiful now. When I was like 20. नहीं मैं बहुत shy थी, मुझे बहुत शर्म आती थी, मतलब नहीं सच्ची मैं बहुत शाय थी. बहुत टाइम लगा मुझे मॉडलिंग करने के लिए. मैंने पैजेंट्स किए, फिर करते करते मैं मॉडलिंग है, बट आई वॉज नॉट एज कॉन्फिडेंट दीज किड्स आर राइट नाउ. We get to see new talents from here also, like future models. Lots of potentials are that we can see in the new students. जो fashion में भी participate किए उसमें काफ़ी I've seen few of the models who are like very future supermodel can be proper groomed and mentor के साथ में. जैसे ही होगा सबसे पहले मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगी. Energy. High energy. Hi sir. Everything out here. सब जोशीले सब यहाँ पे एकदम. आजकल की जनरेशन से ज़्यादा ही जोशीली से ज़्यादा हाई एनर्जी. I don't think nowadays kids need any teaching. They are themselves. They are pre-learned. हमें उनसे सीखना पड़ेगा कि कितना अपडेटेड रहे, टेक्नोलॉजी कैसे सीखे और Comparatively from the old school, so we have to learn from them actually. जोश से हम मदहोश हो जाएंगे. So anyways, we are here to experience हमारी जो हम इन्हीं गलियों से गुजर के यहाँ पे आए हैं, तो it's just time to relive these moments and encourage these students who have such potential and just throw in some more experience from all the expertise that we have. Thank you very much for inviting us out here. It's been very nostalgic. अपने पुराने दिन याद आ गए. So we all are here to support all the students. They must have put in a lot of effort, lot of hard work. So we are looking forward to the show. And Josh, how's the Josh? जोश तो भाई इतना सारा है आसपास में और पता है टैलेंट को हमेशा इनकरेज करना चाहिए बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड दैट वी लिव हम इतना छोटा टैलेंट पकड़ के इतना आगे जा सकते हैं और क्या होता है कि लोगों को ये सपोर्ट नहीं मिलता. तो वी आर हियर बिकॉज हमारे टाइम पे शायद इतनी सोशल मीडिया नहीं थी जो आज इतना है. हम अपने रास्ते कैसे भी करके पेव करके चल के आए पर यहाँ पे आई थिंक सोशल मीडिया इज सो गुड. यू गाइज आर देयर इज सो मच ऑफ मीडिया अटेंशन एंड मीडिया visibility. So I think the students are lucky and we are lucky to be here to be part of this entire event. So all the best to all of them. Any questions you want to ask us? Honestly, Josh means energy. It means youth.
एंड एनी काइंड ऑफ ओपिनियन आप ना जोश में करो, हर अच्छी चीज़ जोश में करते हैं, तो आई थिंक फॉर मी दैट इज व्हाट इज दिस, एंड दैट्स व्हाई आई एम इन फुल रंगीला आउटफिट, सो दैट इट्स ऑल्सो द थीम ऑफ द डे, सो या जोश में आया हूँ. भारत की संग, युवा की रंग, युवा के संग, that comes to me and Josh stands for that. There's something that can resonate from your college days और आज के college. Wow, my college days, to be honest, obviously we've all been students, but हमारे कॉलेज के दिनों में हम यही करते थे, हम यही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते थे, फैशन शोज, डांस कॉम्पिटिशन्स, एंड दिस इज़ वेयर हमारा मंच वही होता था और वही मंच से हम यहाँ पे आए हैं. सो इट इज़ जस्ट गोइंग बैक, being nostalgic and kind of supporting today's generation basically. The vibe is really powerful. I think हम जोश में हैं तो सारे यूथ के आएंगे. This is the biggest festival of youth, so we are here and we are here to watch the youth talent. जैसे कि ये इवेंट का नाम है जोश, तो यहाँ पर का जो वाइब है वो जोश में फील हो रहा है और बच्चों को देखकर और ऐसे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं और वो जोशीले दिन थे जो वो याद आ रहे हैं. आपकी बचपन की यादें अभी जस्ट अंदर आए थे तो मुझे याद आया कि मेरे कुछ टीचर्स थे जिन्होंने मेरे को शो पे डाल दिया था और मैं बचपन से थोड़ा शाई टाइप का हूँ और कैसे मैंने वो बस वॉक किया था वो मैं जानता हूँ और मेरा जोश जानता है क्योंकि शायद से थोड़ा जोश था इसलिए वो हो गया. देखिए सारे बचपन में हम शाय होते, हम सब एक शाय के धीरे धीरे परफॉर्म किए. मैं मिमिक्री किया करता था सारे शोज में अलग अलग जगह थे. जब बॉम्बे आया, जब मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई तब भी मैंने मिमिक्री की और ही इज़ नूर खान, ये एक फैशन फोटोग्राफर है, उन्होंने मेरे फोटोज़ खींच के मुझ में जोश भरा है. दैट्स व्हाई आई एम हियर और मेरी फिल्म आ रही है. रोल मॉडल सारे ही हैं जो नए थे. आई थिंक रोल मॉडल मेरे लिए जॉन इब्राहिम थे. जॉन इब्राहिम को देख के बहुत ही उत्साहित हुए और इस फील्ड में आना चाहा. सबने बॉडी बनाई, बाल लंबे, बाइकर्स, एक्टिंग. सो आई थिंक जॉन इब्राहिम मेरे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल. Well, from being a participant to becoming a judge was a beautiful journey and I really enjoy Josh every year when I come here, be it as a participant or as a judge. I really enjoy this function because hardly लोगों को टाइम मिलता है पढ़ाई से दूर हट के कुछ क्रिएटिव फील्ड में हाथ डालने के लिए. एंड विपुल सर जो कर रहे हैं शाकिर सर के साथ, सबके ही साथ, ही इज़ गेटिंग क्रिएटिव सारी चीज़ें एज एन एजुकेशन लेके आके लोगों को इतना इंस्पायर कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ने का जोश दे रहे हैं. सो विच इज़ अ वेरी कमेंडेबल थिंग टू डू एंड इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट to I mean Josh always has a positive environment and I love being here. Highlight I would talk about, we always keep on watching reality shows and we always imagine if it's scripted or it's naturally the actual talent. And when you come to Josh, every single year there are people who come out with different talents and you look at that live and I mean you get bamboozled. So every year I come here, I see a lot of not just one or two but a lot of amazing performances and that makes my day. So जोश एक इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल है जो सारे इंडिया के बच्चे आके पार्टिसिपेट करते हैं. हर साल हम यहाँ नए टैलेंट को चांस देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं और इस साल जो स्पेशल है क्योंकि इस साल हमारे जोश के साथ NAMG के स्टूडेंट्स ने भी एक अपना ग्रेजुएशन शो प्रेजेंट किया है. फैशन शो के लिए बच्चे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, कैलकाटा, थाईलैंड. सो ग्रेट टर्न आउट एंड इट इज़ हार्ट वेलमिंग एंड वेरी हैप्पी टू सी ऑल द स्टूडेंट्स पुटिंग अप अ ग्रेट शो. See, basically in India we are never given an educational angle to this career of choices, whether it be dancing, singing or modeling. But at
NAMG and at our Nest Academy, we always give importance to career which are important to people. बहुत से हम लोग जहाँ जितने भी लोग मौजूद, चाहे वो कैमरे के पीछे हो, आगे हो, उन्होंने करियर अपने बियॉन्ड एजुकेशन से बनाया है, बियॉन्ड एजुकेशन के बनाए जो इस नॉलेज को, मतलब जो इस चीज़ का एजुकेशन उनको नहीं मिलता है. तो एट हमारे जो एकेडमी है उसमें हम लोग सारे ऐसे करियर को इन्हांस करते हैं जो बच्चों को करियर देता है, और जो कि चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड और इन एजुकेशन फॉर्मेट. सो वी आर ग्लैड कि हमारा इंस्टीट्यूट एक एजुकेशन फॉर्मेट पर इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जिसने मॉडलिंग को एक प्लेटफॉर्म दिया है. मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे हमने कोई भी चीज़ लाइफ में बगैर पढ़ाई के नहीं की है, तो ये एक ऐसा करियर क्यों है कि जिसमें आप पढ़ना नहीं चाहते हैं. अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हैं तो स्ट्रगल से पहले इसका एजुकेशन लीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, और आगे दुनिया बहुत अच्छी है क्योंकि आप उसके बारे में एजुकेटेड और आप वेल वर्स्ड हो. सो यू शुड नॉट निगलेक्ट द एजुकेशन इन दिस फील्ड. मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बहुत ही अमेजिंग दिन रहा क्योंकि बहुत सारा नया टैलेंट. द बेस्ट पार्ट इधर का था जो वो जब मैं सब कंटेस्टेंट से मिल रहा था, उनका एज ग्रुप 16, 17, 18. सो मेनी यंग किड्स who are on the threshold of making a choice in their life. और ये यंग टैलेंट जो है अगर उनको राइट प्लेटफॉर्म और राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जिस तरह इंडस्ट्री स्तर पर उन्होंने सपोर्ट किया उनको आकर, बड़े बड़े डिज़ाइनर, एक्टर्स, मॉडल, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, सारे लोगों ने आकर को सपोर्ट किया है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम स्टार्स इन द मेकिंग देख रहे हैं. आई थिंक जोश का जो सेटअप है वो एक बहुत प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, राइट फ्रॉम एग्जीक्यूशन टू इवेंट मैनेजमेंट. तो आई थिंक ये बच्चों को जो इस लाइन में एंटर करना चाहते हैं, उनको जब ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो एटलीस्ट सही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, और उनको पता होता है कि हाँ प्रोफेशनली चीज़ ऐसी होती है, क्योंकि ना हर इंटर कॉलेज इस लेवल पर नहीं होता और इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है. तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो एस्पायरिंग है, इसमें करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मायने रखते हैं. Here, you know, all the students like 16, 17-year-old, and what performances I've seen, the dancers, you know, the group dancing and the solos and everything, what energy, what power-packed performance. So I was like completely thrilled. So Josh, I would say, is really high today since morning, and completely enjoying the entire vibe. And you know, actually I went back to my college days when we used to perform like this. So it was such a thrilling experience. I think everybody should take part in extracurricular activities and other things also, whatever they like, because it really boosts your confidence and it really helps you in your walk of life when you go ahead, because you have learned so much and you've faced people that you know you can face any challenge that comes into your life. The experience is like amazing. Like nowadays, like I would like to say that MGM, like how they're so lucky that they have such academy which can train them and educate them. At our time, we didn't had such academy, so all we have to do is buy ourselves or see people doing it. So I think now the generation is very lucky because they are very much aware and they have academy which can teach them how to walk, how to talk and get the confidence. So I think they are really blessed. We had to struggle a lot to, you know, learn everything. Sorry? बहुत डिफरेंस है. एज आई सेड कि यू नो उस टाइम पे हमारे पास मेंटर्स उतने नहीं थे या अकेडमीज नहीं थी, तो नाउ दे हैव इट. So I think it's very easy now. I won't say in the field of like, because you really have to work hard, but you at least have somebody to guide you. I definitely want to wish them all the very best. Each and every one was fabulous. Unfortunately, we had to choose one, but all of them had a great energy and the way they performed was really outstanding, and I wish Josh all the very best. मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ये इवेंट अटेंड करने जोश का. जो स्टूडेंट्स के कैंडिडेट्स की जो एनर्जी थी, माइंड ब्लोइंग.
अगर हमारे टाइम पे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता तो आई बिलीव कि हम भी कुछ बहुत जल्दी आगे बढ़ पाते, इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। अगर रोल मॉडल की बात करी जाए तो फिलहाल मेरा तो कोई रोल मॉडल नहीं था, बट एक ड्रीम था कि एक मॉडल बनने का, लेकिन वो धीरे धीरे अपने ड्रीम को मैंने वो पूरा कर लिया। स्ट्रगल बहुत किए लेकिन कर लिया। और आज की डेट में नाउ आई एम अ मॉडल मेंटोर। ऑल्सो आई रिटन अ बुक ऑन मॉडलिंग, दैट इज गाइड टू स्टार्ट अ मॉडलिंग करियर, विच वॉज अ बेस्ट Amazon top 10 बेस्ट सेलर। अभी मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ कि हमारे जब स्टार्टिंग करियर था मॉडलिंग का तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता था, कोई मेंटोर नहीं होता था, और बोला जाता है कि इस इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री को इतने अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। तो मेरा विजन और मिशन एक ही है कि इस इंडस्ट्री को क्लीन दिखाना, और यहाँ पे भी ऐसे मॉडल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को लगता है, फैमिलीज़ को लगता है कि ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, बट ट्रस्ट में ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और मैं उसी को प्रूव करने वाला हूँ।